کرتا ہوں کہ یہ اسکرین بھی نظر آ رہی ہوگی. زبردست. بس یہ بھی 2 منٹ باقی، سٹارٹ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ جو پیج ہے آئی پی ایڈریسنگ کا اس کو بالکل گھوٹ لیا ہوگا. ایسے ہی ہے نا جی؟ اور اس کا مطلب ہے کہ آج سوال پوچھوں گا تو آپ ٹک 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 جواب دیں گے. کمال ہے جی. دیکھیے اچھا، ابھی تو آن لائن اور یہ ریکارڈنگ کی وجہ سے بڑے انداز بدل گئے، اور عزت افزائی کا مجھے ویسے موقع نہیں ملتا کیونکہ لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں لوگ ملک صاحب بےزتی بڑی کرتے ہیں، دیکھو کیسے. لوگ یہ آن لائن والے بھی ہمارے پاس کبھی فزیکلی آتے تھے تو زمین پر بھی ہوتے تھے لوگ، تو اس کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ کوئی 2 یا 3 بندوں کے مطلب رونے ضرور نکلتے تھے. اور یہ کبھی یہ نہیں میک شور کیا کہ صرف لڑکوں کے ساتھ ہو، خواتین بھی ہوں تو عزت افزائی کا ایکول موقع دیا جاتا تھا کہ اگر ایک لڑکے نے آنسو بہانے ہیں ایک خاتون کو بھی موقع ملے. لیکن یہ موقع ہم دیتے تھے نہ پڑھنے پر کہ بھائی آپ پڑھ کے کیوں نہیں آئے. پھر وقت کے ساتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آن لائن نے یہ سارے مواقع چھین لیے، اور پھر جو ہے کوشش یہی کرتے ہیں کہ یار آپ کلاس میں آئیں، ٹو دا پوائنٹ جو پڑھانے کا عمل ہے اس کو آپ جاری رکھیں. ادروائز آپ نے اندازہ لگا لیا، مطلب میں کوشش یہ کرتا ہوں جگا کر کلاس کے اندر ماحول بنا کے رکھا جائے. تو ماحول اسی وقت بنتا ہے جب کلاس میں 2-4 بچوں کی ہلکی پھلکی ہو جائے تو پھر ذرا ماحول اور بہتر ہو جاتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ یہ بھی پتہ لگا کہ کلاس میں کسی ایک بچے کی تھوڑی سی آپ کر رہے ہو تو بچے استاد کے ساتھ نہیں ہوتے. خادم آپ کے ساتھ سوری نہیں کیا آپ ہمیں کہیں ہم سوری کریں. اس دن کی بےزتی کے بعد آ جائے فیل اور کر لے. دیکھ میں بےزتی کرنے کے بعد ایک تو بندہ بھولتا نہیں، کمال یہ ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھتا ہوں کہ بندہ بھاگا دوبارہ واپس کب آتا ہے. تو یہ تم نے ڈٹائی کا پورا موقع دیا، مطلب اختیار کیا، لیکن فیل کر گیا بھائی ہے. ایسے پڑھائی نہیں ہوگی، فیل کرنے والے پڑھ نہیں سکتے. ہاں استاد کی تو سر آپ جتنی بھی کہیں سر یہ سر بھی یاد رہا، پہلے 2 جوتیاں لاؤ پھر کام شروع کرو. کیا خیال بیٹا خالی آتی آ گئے ایسی رشتے کی فیکٹری نہیں لائی. مطلب اس طرح آئے ہو جس طرح یا مطلب ایون نکاح خواہ بھی جو ہے سر 2-4 فائلیں لے کر آتا ہے. بھائی تو بالکل خالی ہے کیوں سر. چلیں سر وہ فزیکل کلاس میں ماشاءاللہ لوگوں کا اپنا بڑا مزاج ہے تو لہٰذا ان کے ساتھ ذرا ہلکا پھلکا تھا. اسٹارٹ کرتے ہیں جی آن لائن ساتھ آ جائیں تاکہ برائے مہربانی میں امید کرتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی. میں سوال پوچھوں گا جواب آپ بالکل دے رہے ہوں گے. اجازت ہے جی؟ چلیں جی. آن لائن میں لکھ کر اپنا تب آزمائی کر سکتے ہیں کیونکہ میں ظاہر بات ہے اس طرح سے تو نہیں بات کر سکتے کہ پارٹیسپیٹ کریں گے کلاس کے اندر. میں بات کیا کہہ رہا ہوں سر جی، بڑا سادہ سا سوال سے شروع کر رہا ہوں. راؤٹر کس لیئر پر؟ جلدی میری بات سن، تو آگے میرے پاس بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا میں نے پوچھا کہ راؤٹر کس لیئر پر استعمال ہوتا ہے؟ اچھا نہیں ٹینشن نہ لو میں نہیں تو میں ٹینس ہو جاؤں گا. اور میں نے پورا آگے پڑھانا ہے، میں ٹینس نہیں ہونا چاہتا. ریلیکس بالکل. ویسے آپ تو تیار ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ نے بتایا تھا آپ کا رشتہ نہیں ہوا. اگر آپ نے میرے سوالوں کے جواب نہ دیے تو 3-4 سال اور نہیں ہوگا. یہ سوچ کر ہوا سر وہ میں نے دیکھا کہ کئیوں کے ٹوٹے بھی ہیں. اچھا لیکن اللہ قائم دائم رکھے سر. میں شادی ہوگی. اچھا پھر صحیح ہے. چلیں پھر آپ سے سوال پوچھ کے دم لینا سیدھا.
राउटर किस लेयर, आईपी एड्रेस कितनी बिट का? आईपी एड्रेस 8 बिट का होता है, 32 बिट, और इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। शुक्र करो 32 बिट का। आईपी एड्रेस किस लेयर पर? आईपी एड्रेस सर ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर, ऊपर से रेफरेंस मॉडल की लेयर्स हमने पढ़ी थी, नीचे से तीसरी लेयर का नाम क्या है? नीचे से तीसरी नेटवर्क लेयर, कमाल है सर। ऊपर से पांचवी लेयर, ऊपर से पांचवी लेयर का नाम सर जी, भाई को बेगम ने इतना दबाया कि भाई की सुध बुध खत्म हो चुकी है, नहीं समझ आ रही भाई। आपने जो पिछला लेक्चर दिया ना, उस पे मैं प्रैक्टिस करके आया। तो मैं पिछले के सवाल पूछ रहा हूँ सर। नीचे से तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर, ऊपर से पांचवी लेयर नेटवर्क लेयर। हम तो नेटवर्क पे खड़े हैं। राउटर किस लेयर पर? नेटवर्क लेयर पर। आईपी एड्रेस किस लेयर पर? 32 बिट वाला एड्रेस किस लेयर पर? इतनी सी बात है सर, हम तो नेटवर्क को पका रहे हैं। हेलो कहाँ रुका था? नेटवर्क लेयर पर। जबरदस्ती। ये जो दोनों भाई लेट आए, जरा खड़े हो जाए। आइंदा जो लेट आ रहा होगा सवाल उनसे पूछे जाएंगे, जो बैठे हैं वो तो इज्जतदार लोग, उनसे क्यों सवाल पूछे? भाई जान आपसे सवाल, नीचे से तीसरी लेयर जमातुल फीटर, ऊपर से पांचवी लेयर। भाई ये पश्तो की क्लास है, इसमें बताया जाता है वही मतलब भाई आप बताएंगे तो सही से खड़े हो जाना आप लोग। यदि जरा ऑनलाइन वाले 5 मिनट मुझे बर्दाश्त करेंगे। फिजिकल क्लास में बहुत सारे लोग दरवाजे पे खड़े हैं, उनसे सवालों जवाब जारी है। तो सर आपके तो हालात खराब। अच्छा 32 मिनट किस एड्रेस की होती है? आई नो टेंशन किसी की कुछ लड़ाई है, कुछ शर्माते हो, छोड़ दे शर्माना यार, कोई नहीं देख रहा। एक तो मास्क भी लगाया हो, अच्छी बात है। राउटर किस लेयर पर? आवाज लगाएं। नीचे से तीसरी लेयर कैसे पता है इन्हें? जाओ शाबाश, शर्मिंदा नहीं होना, ठीक है शाबाश। आजा भाई तू आ गया। हाँ जवाब दे रहा या नहीं? अब मैं समझ गया। एक आईपी है, उसकी बिट साइन पहली 3 बिट 0 थी। सबनेट मास्क क्या होता? क्यों? पहला क्या? क्लास बताओ। क्लास ए में नेटवर्क की बिटें कितनी और होस्ट की बिट? मतलब ये तेरे घर में होंगी 16 हमारे पास तो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ के आता हूँ, ये काम नहीं करना था। पढ़ के आया कि नहीं? चौथी लेयर अभी नहीं बताया। ऊपर से चौथी लेयर, उधर देख स्क्रीन पे घुमा के, कैसे जवाब दे रहे हैं लोग, फिर इनके साथ तू कंपीट कर सकता है। नीचे से चौथी लेयर, चल बता दे। नीचे से चौथी भी क्या ट्रांसपोर्ट? अच्छा जी अभी थोड़ी देर पहले तो बच्चों को कह रहा था, उन्होंने बताया तो है भी। नीचे से तीसरी लेयर का नाम, तो चौथी का नाम, से चौथी, ये कैसे हो सकता है? जाओ शाबाश, आ जाओ भैया, या तो हथियार डाल या सवाल पूछो। जब 1 to 126 बी की 8 से 1 2 से 226 लड़का लाइक लग रहा है, कॉन्फिडेंट लड़का लग रहा है। मजीद टेस्टिंग करते हैं इसकी हैं। 172.1.1.1 किस क्लास का आईपी है? ये बी का। एक और आईपी बता रहा हूं, तुमने इसका सबनेट मास्क बताना है। 68.68.68.68। एक आईपी बोला, इसका सबनेट मास्क बताना है, नहीं तो लड़कियां बता देंगी। जल्दी से बताएंगे मिलकर, आप चारों मिलकर जवाब दें। इसकी रूह काम देनी चाहिए। हाथ लगाए ना, इससे तो मैं नहीं काम पाई, ये कहां से काम पाई? मतलब ऊंची 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 जी जल्दी। 68.68.68.68 कौन सी क्लास का आईपी है?
ए का सबनेट मास्क क्या है? सब लड़कियां जवाब दे रही हैं, याद रखी कि मैंने क्या, हाँ क्या हुआ, सीधा चला नहीं जा रहा, क्या करता रहा, किधर से आया? अच्छा तो मतलब सही चलता क्यों नहीं चलता? सवाल हो जाए। नीचे से चौथी लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, आईपी एड्रेस किस लेयर पर? चल IPv6 बता दे, आईपी किस लेयर पर इस्तेमाल होता है? नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर कौन सी होती है, तीसरी लेयर या चौथी लेयर है? नीचे से तीसरी, ऊपर से कौन सी लेयर होगी? अच्छा जबरदस्त, ये किसने पढ़ाया था ऊपर से ये तीसरी है? क्यों, तेरा क्या होता? मलिक साहब ने क्लास में आने से पहले रिसेप्शन पे कंफर्म किया कि चेक करके बताओ डेटा कि सबने पैसे दे दिए? उनका सबने दे दिए। मैं कहा ऊपर लिखा हुआ ना लाल रंग पे फी नॉन रिफंडेबल, उनका जी सर। मैं कहा हुन मैं जितनी मर्जी बेइज्जती करा, पैसे वापस नहीं मिलते। बात समझ गए? मैंने कितनी शराफत से 4 दिन गुजारे, तुमने देखा, लेकिन अचानक मैं बदल गया और मैं पढ़ाना जानता हूँ, तुम पढ़ कर आओ, ठीक हो गया? जल्दी से बताओ, एक सबनेट मास्क का 255.255.0 कौन सी क्लास का ड्रेस है? जबरदस्त, बी का, सी का नहीं है भाई, जा जा जा, चलो जबरदस्त ही जबरदस्त। तो 4-5 चीजें बराए मेहरबानी लिख लें। एक, आईपी किस लेयर पर है? लेयर 3 पे। राउटर किस लेयर पर है? आवाज नहीं आई, लेयर 3 पे। आईपी की लेंथ कितनी? आईपी वर्जन 4 की 32 बिट। ये 3 बातें अगर आप भूले तो उस्ताद अपना पढ़ाया माफ नहीं करेगा। इन पर तो बचत नहीं है, ये सवाल कोई पूछे और आप जवाब ना दें, इस पर बचत ही नहीं है आपकी। अच्छा, मैं आपके सामने 5 आईपी एड्रेसेस लिखने लगा हूं, 5 आईपी एड्रेसेस लिखने लगा हूं। आपने इनकी क्लासेस लिखनी है सबने, ऑनलाइन वालों ने भी। हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, बराए मेहरबानी अगली दफा से आप लोगों ने पढ़ के आना है, ठीक है जी? और मैं 5 आईपी एड्रेसेस लिख रहा हूं, आपने इनकी अप्रोप्रिएट जो भी क्लास है वो जाए। हमारे बंदों ने इसको रिजॉल्व कर लिया, विल इंश्योर कि आइंदा इस किस्म की चीजें आपके नेटवर्क पर ना हो। तो दैट्स एक्चुअली अ काइंड ऑफ एन अपॉलोजेटिक ईमेल जो आपने कस्टमर को करनी है। प्रॉब्लम ये है, 30 मिनट में ये 50 नंबर का जब आप सवाल करते हैं, पेपर करते हैं, तो अक्सर लोग अंग्रेजी की ईमेल को स्किप कर देते हैं और वो फोकस करते हैं टेक्निकल पेपर पे 40 नंबर पर। याद रखिएगा, ये पेपर 2 जगह पे चेक होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में और एचआर में। अगर आपने अंग्रेजी की ईमेल नहीं मिली तो एचआर आपको पास नहीं करेगा, आपके भले 40 में से 40 नंबर हो, आप आगे क्वालिफाई नहीं करते। और अगर किसी बंदे ने अंग्रेजी की ईमेल पे 25 मिनट लगा दिए तो वो टेक्निकल पेपर को बिल्कुल अपने खराब करेगा। आपने इंश्योर करना कि बैलेंस करें, 5-7 मिनट में मेल लिखें और 20 से 22 मिनट जो है वो आप अपने टेक्निकल पेपर को दें। उसका तरीकाकार यही होता है कि आप एक अंग्रेजी की ईमेल स्टार्टिंग और एंडिंग वो हमेशा तैयार कर लेते हैं और फिर उसी के अंदर जो भी आए उसको फिल कर दिया करते हैं। मैं एक बड़ी अहम बात बताने लगा हूं जो शायद पूरी दुनिया में लोग जानते ही होंगे। जो ईमेल लिखी जाती है वो अमेरिकन अंग्रेजी होती है, अमेरिकन स्टाइल में। वो ब्रिटिश स्टाइल में नहीं लिखी जाती। अमेरिकन स्टाइल में जब ईमेल लिखी जाती है तो आपने जैसे डियर के आगे जो भी डालना है वो डाला। ब्रिटिश स्टाइल में अगली लाइन यहां से और उसके बाद अगली लाइन यहां से स्टार्ट होती है और रिगार्ड्स यहां पर या यहां पर कहीं पे भी डाला जा सकता है। जो अमेरिकन स्टाइल होता है उसमें इससे नहीं बल्कि अगली लाइन एग्जैक्टली इसके नीचे से स्टार्ट होती है और रिगार्ड्स यहां पर आता है।
یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ سے شیئر کی, کیونکہ یہ ایک بڑی مسٹیک ہم کر جاتے ہیں. تو آپ نے یہاں پر گیپ نہیں دینا, یا آپ کوئی پرانے وقتوں کی درخواست نہیں لکھ رہے, کوئی اپلیکیشن نہیں لکھ رہے جس میں آپ کومے کے نیچے جائیں گے. آپ نے ایگزیکٹ سارے الفابیٹ ایک لائن میں ہوں گے. خیر, اس میں جو اگلا سوال ہے ٹیکنیکل سائٹ پر, وہ سوال جو ہے وہ 5 آئی پی ایڈریسز ہیں. پہلا سوال ہے 5 نمبر کا, اور وہ کہتا ہے کہ ان کی اپروپریٹ کلاس لکھیں. میں وہ آئی پی ایڈریسز لکھ رہا ہوں, آپ بھی لکھ لیجئے گا, اور آپ نے ان کی صرف کلاسز لکھنی ہے. یہ جسٹ ایک طرح کا ریویژن ہونے لگی ہے. وہ آئی پی ہے جی 156.156.156.156, اس کے بعد 126.156.55.225, پھر 55.155. ٹھیک ہے لکھ لینا. 226, پھر آپ نے کیا 216.156.56, اور پھر 56.56.56.156. ذرا جلدی سے بتائیے گا پلیز, بعد میں چھاپا ماریے گا. کلاس بول دیں اس کی. کہاں سے پتا لگا؟ آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے کہا یہ 128 سے 191 کے درمیان میں ہے, تو آپ نے کیا کہا, اٹ belongs to class B. اور یہ بولیے گا زبردست اے, یہ بولیے گا اے زبردست, یہ بولیے گا سی غلط, نہ ڈی بھی نہیں ہے. اور بھائی یہ 192 سے 223 کے درمیان میں ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے, اور مسئلہ یہ ہے یہ آکٹیٹ 255 سے بڑا ہے. یاد کریں میں نے لاسٹ لیکچر میں کہا تھا نمبر 0 سے چھوٹا نہیں اور 255 سے بڑا نہیں ہو سکتا. یہ نمبر 255 سے بڑا ہے 256. تو کیا بنا یہ انویلڈ آئی پی ہے. یہ ریکارڈنگ سنیے گا, میں نے کہا بھی تھا کہ اگر یہ اس رینج میں فال نہیں کرے گا تو ایڈریس کیا ہوگا, انویلڈ. ہاں یہ کلاس اے ہے, اس سے پتا لگا. اچھا, اب آپ لوگ ٹیسٹ دے کر باہر نکلتے ہیں, ہوتا کیا ہے کہ وہ ای میل لکھنے میں آپ اتنے پریشان ہوتے ہیں, ٹائم ضائع کر دیا آپ نے 18 منٹ 15 منٹ. جب ٹیکنیکل پیپر آیا تو جلدی جلدی کیا, اور یہ سب سے آسان سوال تھا اس میں, تو آپ نے جلدی جلدی کلاسز لکھی بی اے سی واٹ ایور جو بھی. باہر نکلے تو ایک لڑکے نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ یار وہ ایک سوال میں 256 بھی تھا, تو نے کیا لکھا؟ تب آپ کو پتا لگتا ہو تیری کی. پھر آپ سوال پوچھتے ہیں کتنے سوالوں میں 256 تھا, وہ کہتا ہے ایک. تو آپ کہتے ہیں چل شکر ہے ایک ہی نمبر کٹے گا. نہیں, یہ ہے اڈیپٹیو چیکنگ. پورا سوال غلط ہے, 0. تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا سوال آپ کے پڑھے میں سے ہوگا, لیکن سوال سیدھا نہیں ہوگا. یہ میں پہلے بتا چکا. یہ کیا ہے, یہ ہے انویلڈ آئی پی ایڈریس. میں اس پر کلاس کا کوئی تعین نہیں کر رہا. زبردستی فرحان بھائی, بالکل آکٹیٹ کے اندر یہی ہے جی. 255 ہوتے تو صحیح ہوتا. جی 255 کا کوئی مسئلہ نہیں, 255 تک کریکٹ ہے. اچھا, اسی طرح نا انٹرویو میں ایک بندہ سوال کرتا ہے ایسے, ذرا سنیے گا, دیکھ کر بتائیے گا اس کا تعلق کس کلاس کے ساتھ ہے. آواز نہیں آئی. انہوں نے کہا کلاس اے, اور اس نے یہ کہا. دیکھیں جب انٹرویو ہوتا ہے نا اور آپ نے اس طرح لکھا اس نے, اور آپ نے جذباتی ہو کے کہہ دیا کلاس اے, تو تیر کمان سے نکل گیا. لکھنے والے کو اپنا سوال مکمل کرنا ہے. اصل میں یہ جب اس نے پورا کیا تو غصے میں اس نے 256 ڈالا, اور اب آپ کے ہاتھ سے چیز نکل چکی ہے. اگلے کے سوال کو عزت ہے. جو انٹرویو کر رہا ہوتا ہے نا اس کے سوال کو عزت ہے, اور ہمیشہ انٹرویو یونیفارم ایک جیسا رکھیں, ہمیشہ اس میں تھوڑا سا توقف رکھیں. سوال ختم ہونے دیں, 1 سیکنڈ کا توقف دیں, بھلے سوال آتا ہو بھلے نہ آتا ہو. کیونکہ اگر سوال آتا ہے آپ فوراً بول رہے ہیں, پھر اگلے میں فوراً بولا, اگلے میں رکے تو اس کا مطلب آپ کا کانسیپٹ ویک ہے.
तो आपने एक जैसा करना है कि आपका कम से कम 2-3 सेकंड का तवक्कुफ है और अगले को पता हो ये 2 सेकंड 3 सेकंड के तवक्कुफ के बाद बंदा बोलता है। ये थोड़ा सा पॉइंट जो है ये आपने लाजमी कुछ चीजें सीखनी है, सवाल को मुकम्मल होने दें उसके, बल्कि जब वो सवाल पूछे एक तरीकाकार होता है कि आप उसको बड़े तरीके के साथ हल्का सा एक अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लफ्जों से नहीं, और बहुत जरा गर्दनें हलाल आके भी नहीं कहे ऐसे ऐसे करेंगे हाँ कमाल हो गया जी। मतलब एक बॉडी लैंग्वेज होती है कि जिसके पता लग जाता है कि यार ये सवाल अगले ने अच्छा पूछा। तो ये बड़ी आपकी एक तैयारी है इसमें। जैसे हम अपना जब फौज में दाखिल भर्ती होते हैं तो ISSB में लोग तैयारी करते हैं बड़ी, और बताते हैं जी ये करना, तो ये एक इंटरव्यू का पूरा एक प्लान होता है सवालों को कैसे आपने हैंडल करना है। चलो जी, बिल्कुल जी, पेशेंस इज द की। ये अभी मैंने आपसे जितना पहले 10 मिनट बातचीत की है मैंने पिछला रिवाइज करवाया, मैंने कोई अगली बात नहीं की। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सबनेट मास्क बनाने का तरीकाकार भी देख लिया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि आईपी के 2 हिस्से होते हैं, एक नेटवर्क का पोर्शन और एक होस्ट का पोर्शन। ये बताना बड़ा जरूरी है भाई, मैं ये नहीं कर सकता आगे आऊं और बगैर पिछला रिपीट किए चल भाई आगे शुरू कर दें। ये थोड़ा सा पहले 8-10 मिनट हमें ये चीजें सीखनी है, जो पढ़ना है उसको हमें एक दफा जरा रिकैप जरूर करना है। तो ये नेटवर्क का पोर्शन था और वहां पे लोगों ने सवाल पूछा सर नेटवर्क क्या है और होस्ट क्या है, और मैंने उनको सर वक्ती तौर पे चुप कराया था कि भाई अगले लेक्चर में तसल्ली के साथ हम पढ़ेंगे नेटवर्क क्या और होस्ट क्या है। और फिर हमने यहां से ही सबनेट मास्क बनाया था, याद करें। और मैंने कहा जी आपने सबनेट मास्क कैसे बनाना है, नेटवर्क की बिटे 1 करें, होस्ट की बिटे 0 करें, आपका सबनेट मास्क बन जाएगा। लोगों ने फिर सवाल पूछा सर सबनेट मास्क क्या है, तो मैंने कहा भाई होस्ट, हौसला करो। आज एक काम करते हैं, आज जरा यहां से शुरू करते हैं कि नेटवर्क क्या है, होस्ट क्या है, आईपी को 2 हिस्सों में तकसीम क्यों करते हैं, और सबनेट मास्क क्या है और इसका काम क्या है। इजाजत है जी? जी मोहसिन रजा, मैंने लास्ट टाइम 127 का बताया था, दैट इज एक्चुअली फॉर द लूप बैक टेस्टिंग। उसके लिए जो सिस्टम की अपनी इंटरनल टेस्टिंग के लिए होता है, सर्विसेज के लिए, ओएस के लिए, और उस पर अभी हमने कोई बात नहीं की। तो मैंने 0 और 127 बिल्कुल जी लोकल होस्ट अली ने फौरी तौर पे छापा मारा और लिख दिया। 0 और 127 वक्ती तौर पे ये जवाब काफी है, रिजर्व है। थैंक यू अबू बकर, थैंक यू। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, ये जो 2 हिस्सों में तकसीम करने वाली बात है उसमें पहला तो पॉइंट मैं बता दूं, नेटवर्क का मतलब होता है कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी। और जो होस्ट है वो उस कंपनी का यूजर है। होस्ट क्या है? उस कंपनी का यूजर है। मसलन आप कहते हैं, अच्छा मेरी तस्वीर नहीं आनी चाहिए अंदर, ये इंश्योर करना, मैं बड़ा इस मामले में टची बंदा हूँ। तस्वीरें या वॉइस रिकॉर्ड करो, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करो, जबरदस्त। चलो जी आगे आते हैं जी। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, और दूसरा हमने क्या कहा उसके अंदर यूजर। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार ये वतीन है और ये उसका यूजर है, यूजर नंबर 1। आप कहते हैं वतीन क्या, इट्स द नेम ऑफ ए कंपनी, और 2 ये क्या, ये उसका यूजर है। सो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई और ये उसका यूजर हो गया। दुनिया का कोई भी एड्रेस उठाएं आप, कोई एड्रेस उठा ले, कहा जाता है कि उसके 2 हिस्से होते हैं, वो डिवाइडेड होता है, वो मॉड्यूलर होता है, जिसे हायरार्किकल कहते हैं, हायरार्की से निकला हुआ। फ्लैट एड्रेसिंग स्कीम नहीं है। मैंने क्या वर्ड बोला? दुनिया का कोई भी एड्रेस फ्लैट नहीं है। फ्लैट का मतलब ये है, जैसे दुनिया में अगर घर बन रहे होते, अगर पहला घर यहाँ पाकिस्तान में बना तो आपने लिखा जी मकान नंबर 1, दूसरा अमेरिका बना मकान नंबर 2, अमेरिका बना 3, इंग्लैंड बना 4, फिर पाकिस्तान बना 5, फिर मिडल ईस्ट बन गया 6 एंड सो।
یہ کیا ہے؟ اٹس اے فلیٹ ایڈریسنگ اسکیم. اب اس کا نقصان کیا ہے کہ اگر آپ کا ایک خط چلتا اور لکھا ہوتا مکان نمبر 4002، تم پہلے تو پوری دنیا میں گھومتے رہے، بڑی مشکلوں تم نے 4001 نمبر مکان ڈھونڈا جو افریقہ کے جنگلوں میں تھا، اور تم بڑے خوش تھے کہ ابھی 4001 کے ساتھ 4002 ہوگا، تو پتہ لگا یار وہ تو پاکستان میں کہیں گوادر کے پاس ہے 4002. اس کا مطلب ہے کہ اگر فلیٹ ایڈریسنگ اسکیم ہو تو تمہاری جو سرچنگ ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے. آپ میں سے جو 4-5 بندے پروگرامنگ کی دنیا سے ان کو پتا ہے وہ جو ٹری کا میکانزم ہوتا ہے، بائنری ٹری کا میکانزم، جس میں سرچنگ جو ہے وہ بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ میں نے کہاں پر موو کرنا ہے. تو یاد رکھیں جب بھی چیز ماڈولر ہوگی آپ اپنی منزل تک بڑے آرام سے بڑی جلدی پہنچ سکتے ہیں. مثلا آپ نے یہاں پہ گاڑیوں کے نمبر دیکھے ہوں گے، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک نیٹ ورک کا پورشن اور ایک ہوسٹ کا پورشن. مثلا گاڑی کا نمبر ہے LEA اور آگے نمبر ہے 1 2 3 4. آپ بتائیے گا کس نیٹ ورک کی گاڑی ہے؟ یہ نیٹ ورک ہے، یہ ہوسٹ ہے. تو گاڑی کو دیکھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا نیٹ ورک ہے؟ لاہور کا. یہ لاہور کا نیٹ ورک ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کا یوزر ہے. اسی طرح اگر گاڑی کا نمبر ہو RIA تو کون سا نیٹ ورک ہے؟ راولپنڈی کا نیٹ ورک ہے، اور یہ اس کا یوزر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو گاڑیوں کے نمبر رکھے گئے ہیں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، اس کے بھی 2 حصے ہیں. کیا حصے ہیں؟ ایک نیٹ ورک کا اور ایک ہوسٹ کا پورشن. بالکل اسی طرح اگر آپ دیکھیں گھروں کا نمبر دیکھیں، کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ خط آیا جی 4003، خط کے نیچے سب سے پہلے کیا لکھا ہوگا؟ پاکستان. اب خط پوری دنیا میں براڈ کاسٹ نہیں ہو رہا، خط سب سے پہلے کہاں پہ جائے گا؟ پاکستان. خط پاکستان میں آگے پورے پاکستان میں براڈ کاسٹ نہیں ہوگا، نیچے لکھا ہوگا پنجاب. خط اب پنجاب میں آ کے براڈ کاسٹ نہیں ہوگا، نیچے لکھا ہوگا لاہور. خط اب پورے لاہور میں آ کے براڈ کاسٹ نہیں ہوگا، نیچے لکھا ہوگا DHA. پورے DHA نہیں جائے گا، لکھا ہوگا فیس 5. پورے فیس 5 نہیں جائے گا، نیچے لکھا ہوگا بلاک E. پھر E میں جا کے لکھا ہوگا مکان نمبر 201. اس کا مطلب خط پھر فائنلی اپنی منزل پہ کس طریقے کے ساتھ پہنچا، یہ آپ کی سرچنگ کے میکانزم کو فاسٹ بناتے ہیں. اب اگر گاڑیوں کے ایڈریسز بھی ماڈولر ہیں، پوسٹل ایڈریسز بھی ماڈولر ہیں، بلکہ اگر آپ ٹیلکو کے نمبرز دیکھیں آپ، بڑی ایزیسٹ ایگزامپل، نمبر ہے 0300 841 1234. اس کے 2 حصے ہیں، غور سے دیکھیں. یہ نیٹ ورک نہیں ہے، اور کیا یہ ہوسٹ نہیں ہے؟ اس کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟ کون سا نیٹ ورک ہے؟ جیز کا. اور یہ جیز کا یوزر ہے. جیسے یہ لکھا ہوتا ہے 0333 841 1234، کون سا نیٹ ورک ہے؟ U1 کا نیٹ ورک، اور یہ اس کا یوزر ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ تمہارے جو ٹیلکوز کے نمبر ہیں وہ بھی ماڈولر ہے، اور کتنے حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے؟ نیٹ ورک کا پورشن اور ہوسٹ کا پورشن. جب پوری دنیا کا ہر ایڈریس ماڈولر ہے تو ہاؤ کمز اٹ پاسبل کہ جو دنیا کی اس وقت سب سے پاپولر ایڈریسنگ اسکیم ہے وہ ماڈولر نہ ہوتی؟ یعنی دنیا کی جو اس وقت سب سے پاپولر ایڈریسنگ اسکیم اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایڈریسنگ اسکیم ہے وہ تو IP ہے. تو اسی چیز کی خاطر اس کے بھی 2 حصے بنا دیے گئے، ایک نیٹ ورک کا پورشن اور ایک ہوسٹ کا پورشن. امید ہے ورڈ نیٹ ورک اور ہوسٹ کی سمجھ ضرور آ گئی. زبردست. اچھا میرے پاس خط آتے ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے ہارون اور نیچے لکھا لاہور، ہارون اور لاہور. پھر نیچے لکھا جی ہارون اور کراچی. پھر نیچے لکھا جی احمد اور لاہور. خط کے 2 حصے ہیں. یہ خط کہاں پر آئے؟ ڈاک خانے میں آئے. خط کہاں پہ آئے؟ ڈاک خانے میں. ڈاک خانے کو یاد رکھیے گا، میں چند دن پہلے نیٹ ورک کو ڈاک خانے سے تشبیہ دے چکا ہوں. نیٹ ورک لیئر کو ڈاک خانے سے تشبیہ ہم دے چکے ہیں. اس خط کے اوپر یہ کیا ہے؟ ایڈریس ہے. اس کے 2 حصے ہیں، یہ نیٹ ورک اور یہ کیا ہے؟ ہوسٹ. یہ نیٹ ورک اور یہ ہوسٹ، یہ نیٹ ورک اور یہ ہوسٹ. جب یہ خط ڈاک خانے میں آتے ہیں تو یہ سارے خط وہاں پڑے نہیں رہتے، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ یاد کریں میں نے وہاں پہ نیٹ ورک لیئر پہ کہا تھا سارٹنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن. خطوں کی چھانٹی ہوتی ہے، الگ ہوتے ہیں. اور خطوں کی چھانٹی آپ مجھے بتائیں کیا ہوسٹ کے ایڈریس کی بیس پہ ہوگی؟ کیا اس وقت یہ کیا جائے گا ہارون کے خطوں کو الگ کر لو اور احمد کے خطوں کو الگ کر لو؟
آپ بتائیں سارٹنگ کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ نیٹورک ایڈریس کی بیس کے اوپر ہوتی ہے. سارٹنگ ول بی ڈن آن دا بیسس آف نیٹورک ایڈریس. یہ جملہ لکھ لیں. سارٹنگ ول بی ڈن. لاہور کے خطوں کو الگ کیا جائے گا, کراچی کے خطوں کو الگ کیا جائے گا, اسلام آباد کے خطوں کو الگ کیا جائے گا. کیا کہا؟ سارٹنگ ول بی ڈن آن دا بیسس آف نیٹورک ایڈریس. بھائی جو بڑے دنوں بعد آیا ہے دوبارہ, ہاں سمجھ آ رہی؟ صحیح بتا. کیا بندہ تعریف کر دیتا ہے سر آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں, کمال کرتے ہیں سر. کیا کہتے ہو؟ کیا بات ایسے نا تھوڑی وقت گائے بغیر تعریفیں کرتا رہا کر. بڑے بھائی کو نہیں کرنی, تو مجھے ڈائریکٹ کرنی, مجھے بھی پتا لگے. نہیں میں نیو یارک میں تھا, میں اس لیے ذرا موو بھی نہیں کیا, مجھے زیادہ اپرچونیٹیز وہاں نظر آ رہی تھی, تو ادھر سے ہی پروجیکٹس وغیرہ ماشاءاللہ کافی سارے کر کے اسی جگہ سے, اور ماشاءاللہ وہ کیے بھی پاکستان کے لیے. تو مطلب جا کر نا عملاً ہم کرنے والے لوگوں میں سے. اور ابھی بلکہ میں آگے چلنے سے پہلے سارے جتنے بندے ہمارے ابھی یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں اور بہت ساری آپشنز آتی ہیں. یہ ابھی 2-3 آپشنز یہ آ رہی ہیں. ایک تو اخوت کے ساتھ ہمارا آلریڈی ایک پروسیس چل رہا تھا, ان کا موسٹ پروبلی سپٹمبر کے مڈ پہ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. سائبر سیکیورٹی کا بیچ 6 months کا ہے, ٹوٹل فری آف کاسٹ. 3 گھنٹے کی اس میں ڈیلی کلاس ہے, منڈے ٹو فرائیڈے, اور 1 روپیہ نہیں. اور اس میں کوئی ہمارا 2 نمبر استاد نہیں پڑھاتا, ٹاپ آف دا لسٹ استاد کاربیٹ کرا. سائبر سیکیورٹی 6 مہینے کا کورس, دنیا کے تمام پلیٹ فارمز. CH ایتھیکل ہیکنگ کروا رہے ہیں, لائنکس کروا رہے ہیں, سسکو کی سیکیورٹی کروا رہے ہیں, فورٹینیٹ, پیلو آلٹو, پوری ڈیٹیل, آئس, ای میل سیکیورٹی, WSA, یہ تمام چیزیں آپ کانٹینٹ اگر دیکھو گے. اور کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب ہمیں بندوں کی ضرورت ہے, ہمارے پاس آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہو لائنوں کی لائنیں فائلوں کی پڑی. البتہ میں اپنے بچے جو یہاں پر آتے ہیں ان کو بڑا اسٹرانگلی کہتا ہوں کہ اگر 6 مہینے کی کمٹمنٹ کر سکتے ہو تو ڈو جوائن دیٹ. ایک آپشن. دوسری آپشن جی میں نہیں جی نہیں, محسن رضا بڑا کلیئر ہے, کیٹیگوریکلی ہے, ان کی 3 ڈفرنٹ فائنینسنگ ہے. ڈیفینیٹلی جو بچے ڈیزرونگ ہیں کوئی کچھ وہ اس پہ جاتے ہیں جو آپ نے مینشن کیا. اس کے علاوہ بندے جو ہیں وہ الگ سے ادر دین پڑھانے کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں کہ یہ بچوں کو صرف پڑھانے کے لیے کام کرنا ہے. فار ایگزامپل کاربیٹ اگر کہتی ہے کہ یار میں بچے کا 50% دیتا ہوں, تو ہم کوئی زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہوتے, یاد رکھیے گا. ہم صرف کچھ لوگ یہاں پر پاکستان کی فائنینشیل سٹیٹ کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اب اخوت نے 10,000 بچے کا ایک پروگرام سٹارٹ کرنا ہے گورنمنٹ کے فنڈنگ سے, تو وہ گورنمنٹ کے پیسہ جو ہے وہ زکوٰۃ تو نہیں ہے بھائی. تو تھوڑے سے کانسیپٹ پلیز وہ کریکٹ رکھنے ہیں آپ نے. اچھا جی, آگے میں اس کے اندر مزید کلیئر کر دوں کہ یہ آپ کی چوائس ہے جی, جوائن کرنا مور دین ویلکم, نہیں کرنا میں کون سے کوئی, میں نے تو کہا تھا آپ یہاں پہ آئیں گے جتنی آپشنز ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگلا ہے AI کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. وہ حضرات جو پروگرامنگ کے دل دادا ہیں, وہ AI کا جو بیچ ہے وہ پاکستان کے بچوں کے لیے بھی ہے, اور وہ جتنے پاکستان کے اندر دور دراز کے علاقے کے اور باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے آن لائن کی آپشن اویلیبل ہے AI کے کورس کے اندر. اور جتنا بچہ باہر کا ہے, سعودیہ کے, مڈل ایسٹ کے, US کے, پرائورٹی ہے ان کی, کیونکہ پہلی دفعہ ان کو کنونس کیا ہے کہ یار پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں, جو گاڑیاں چلا رہے ہیں, جو نارمل نوکریاں کر رہے ہیں, اگر ہم ان کو پڑھائیں گے تو سچویشن پاکستان کی بہت بہتر ہوگی. بالکل اسی طرح اگر آپ کے بہن بھائی ویلے بیٹھے ہیں, ملے دار میں کوئی ویلا بیٹھا ہے, ویب کی کلاس ہے,
पूरी SEO की क्लास है 6-6 महीने के, बजाय कि आप पैसे दे के मार्केट के अंदर 1.5 लाख रुपया लोगों ने लगाए हुए हैं यहाँ पे रेट, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ जी, आजाद चाय वाला 1,85,000 रुपया, और आप जाकर बैठकर आप जरा म्यार को आप जरा अंदाजा कीजिएगा। 6 मंथ्स का जो हमारा इंस्ट्रक्टर है वो ऑलरेडी 2400 घंटे वेब पढ़ा चुका हुआ है, सरकारी कोर्सेज में, बाकियों में। टॉप के जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो हैं, और एक पैसा और कोई बॉन्ड नहीं है आपसे कि तुम इसके बाद इतना अर्सा इधर नहीं जाओगे। हमारा और ऑब्जेक्टिव आपकी जॉब प्लेसमेंट है, उसमें बकायदा पैनल्स हैं बनाए गए जो आपकी प्लेसमेंट करवा रहे होंगे जॉब के लिए। खुद डॉक्टर अमजद साकिब साहब यहां पर आकर खुद वो आपको मोटिवेट करते हैं कि प्लीज बाहर से प्रोजेक्ट पकड़ो ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सके। और इसके अलावा जी साइबर सिक्योरिटी का ऑनलाइन अभी प्लान नहीं है, फिर भी बताता हूं। डेवऑप्स कॉर्बेट 60,000 रुपया लेती है, जो ड्यूरेशन इसके आधे के 60,000 लेती है। ऑनलाइन एंड इन कैंपस दोनों ऑप्शंस आर अवेलेबल। नेटवर्क की क्लास, अगर नेटवर्क की क्लास आप पढ़ते हैं जिस भी टाइम पर अवेलेबल है, CCNA का पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें स्पॉन्सर्ड बाय अखुवत। आपको याद करें मैंने कहा था कि सिर्फ तुमने पैर रखना है, जो मुफ्त चीजें होंगी वो मैं तुम्हें बता दूंगा। CCNA का एग्जाम $300 का फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। जी सर, प्रोग्रामिंग का शगफ होना चाहिए तुम्हारा टिका के। डेवऑप्स का जो इंस्ट्रक्टर है वो नेटसोल का इंस्ट्रक्टर है, टीम लीड है मेन, और वो 4था बैच वाला करवा रहा है। और 50 की स्ट्रेंथ हमें अलाउ की थी नेपटेक ने, उन्होंने अखुवत वालों ने। उस बैच के अंदर 150 बंदा बैठा होता, और हम रोकते नहीं है किसी को, वरना हम भी कह सकते हैं पैसे देकर आकर बैठो। सर जी आप नौकरी याफ्ता हैं और ज्यादा प्रायोरिटी है। सारा तो मसला बेचारे शादीशुदा नौकरी वालों के लिए, सारे पैसे तो बेगम खा जाती है, घर चलाना है। सर ये समझाया उनको, वरना आज तक सिर्फ जो बच्चा निकलता था ना फ्रेशी, उसको करते थे और उसको कभी एहसास नहीं हुआ था कि इनकी वैल्यू क्या है, वो उल्टा बर्बादी का सबब बन रहा था। तो इसलिए ये कहा गया कि नहीं, ये कोर्सेज जो प्रोफेशनल्स हैं उनको करवाएं, उनके पास करना चाहते हैं पैसे नहीं है, उनको करवाएं आप। तो टॉप के ये कोर्सेज हैं, और अगर आप पूरा एक कोर्स करते हैं और उसके बाद फिर कोई करना चाहे 6 महीने बाद, आप फिर कर सकते हैं, और कोई पैसा नहीं है। और इन तमाम में एग्जाम शामिल हैं। मैंने आपको कहा था हौसला करो, CCNA का बता दूंगा। मैंने बता दिया कि CCNA का पेपर बिल्कुल 100% फ्री है उसमें। चलिए सच टाइमिंग शाइमिंग का यहाँ से आप वो हमारे वहाब भाइयों ने आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको वो आंसर कर देंगे। वहाब भाई हम मशहूर यार 0303888855, आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको बता जी। यार ये वहाब भाई हमारे मेन करते धरते जो आपको घेर के लाए हैं, उन्हीं से आपने इंफॉर्मेशन ली जी। मैं फिर बता रहा हूं, साइबर सिक्योरिटी एहसन मलिक साहब, इसलिए टीचरों के नाम लिख रहा हूं। ये CCI सिक्योरिटी की लैब पास की हुई है, और दुनिया के अंदर ये पूरी दुनिया के लिए ये सिस्को के ऑफिशियल सिक्योरिटी के इंस्ट्रक्टर हैं, और ये ग्लोबल हवावे के इंस्ट्रक्टर हैं। तो ये बड़ा ये यूनिक कॉम्बिनेशन है कि उन्होंने दोनों लाइनों के अंदर जो है वो किया हुआ, और ये साइबर सिक्योरिटी पढ़ा चुके हैं। तो आपने अगर किसी का चेक करना हो ना लेवल, तो उससे पूछ के लैब पास की हुई है 9 घंटे की, तो ही इज वन ऑफ दोस। और इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना है, और मकसद सिर्फ ये। अभी 7 वाली क्लास में हसन साहब क्लास ले रहे हैं, लड़के ने सर $2200 का प्रोजेक्ट पकड़ा पढ़ते में। उसी क्लास में आगे से लड़का खड़ा हुआ, अभी उसने कहा मैंने 400 पाउंड का प्रोजेक्ट पकड़ा। एक रेस है कि यार इस तरह से काम तो ये करना है जी। तुझे कोई अपने भाई से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू खुद कफील और कह भाई मैं खुद करूंगा, खत्म हो गई बात।
یہ جو بھائی ہیں نا پیسے بھیجتے ہیں اور پھر پورے ٹبر کو بتاتے ہیں, پورے ٹبر کو نا سر ڈفرنٹ ماں باپ کو خاموشی سے الگ کال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کچھ کیتا انہیں, دیکھو نا میں تو یہی کر سکتا نا, دیکھو انہیں نہیں پڑھے تو میں کی کرا. یہ بات نہ ماں باپ تمہیں بتاتے ہیں نہ بھائی کی کوشش ہوتی ہے تم تک پہنچے. لیکن یہ انسان کی نفسیات ہے, یاد رکھو بھائیوں پر بوجھ اتنا مت ڈالو کہ نکو نک آ جائے. وہ نہیں, مجھے نہیں ہونا نا, مجھے نہیں ہونا, میں صحیح بتا رہا ہوں. اور میں اگر یہ کورسز پیسے دے کر بھی کہے نا, آج وہ کہتے تھے نا خان صاحب لکڑ بھی کھڑی کریں تو الیکشن میں جیت جائیں گے, تو آپ یقین جانیں ہم کوئی بھی کورس لگاتے ہیں دنیا آ جاتی ہے. پیسے بنانا چاہیں تو ان گنت بنا سکتے ہیں, لیکن یہی کوشش کی کہ آپ جتنے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں, بچے نہیں دے سکتے پیسے بھائی, برے حالات ہیں, بجلی کے بل نہیں دیے جاتے. تو میں نے پہلے تو دیکھا کہ جو سیریس لوگ ہیں وہ آ جائیں, جب آتے ہیں تو پھر ان سے بات کیجیے, بیکاز یہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اور اگر یہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو پوری 10 جماعتیں پڑھا کر کسی رستے پہ چڑھا کے کام, ہمارے منزل جو ہے نا وہ پروجیکٹس لینا ہے. میں ڈے 1 سے تمہیں کہہ رہا ہوں. اور اپنے باہر کے جو بھائی لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو آزاد کر کے, ان کی بھی تو یار زندگی بڑی ٹف ہے. باہر لوگوں کی زندگیاں اتنی آسان نہیں ہیں, آپ یقین جانے آپ کی سوچ سے زیادہ وہاں پر مہنگائی ہے. سر ٹائم میں ضرور اپنا پورا کروں گا, گھڑی بھی دیکھنی, میں ٹینشن آ گئی. ہاں لوگ گھڑی ایسے دیکھتے ہیں نا, ملک سر نے 5 منٹ لگا دیے. یہ ساری آپشنیں شیئر کیجیے. جی سر جی بتا دیں گے, آپ نے سر وہ وہاب بھائی کو میسج کرتے ہیں, وہ میسج کے کوئی پیسے نہیں دیتے, انفارمیشن کے کوئی پیسے نہیں دیتے. آپ کو جو ڈیٹیل ہوگی وہ آپ کو بتا دیں گے. جی سر جی میرے اپنے یار, میرے احسن ملک صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, 20 سال سے ساتھ ہیں. جی کاربیٹ کے انسٹرکٹر. ہاں جی, تم دونوں اخوت میں ہو, کام کر رہے ہو کدھر, وہ جو پرواز میں, اچھا قصور میں. صحیح بالکل. لیکن یہ ذرا نا تھوڑا سا ایک چھوٹا سا فرق ہے. میں یہ جو کر رہا ہوں یہ ویسے تو قصور کے اندر بڑے اچھے وہ ہیں, اگر تم کر رہے ہو تو وہ زبردست ہے. لیکن ظاہر بات ہے جو آپ لاہور کے اندر اس سینٹر میں رکھتے ہیں نا, وہ اور جو ٹیکنالوجیز آفر کر, وہ سر وہ نہیں کر سکتے قصور میں. آپ نہیں کر سکتے قصور میں. آپ صرف وہ بیسک کورسز کریں گے, ہائی اینڈ کورسز کا قصور میں کانسیپٹ نہیں ہے. جو کرنا چاہے وہ پھر ہاتھ حاضر ہے. بس سر میرے خیال میں آن لائن والے بھی ڈفرنس بٹوین ایتھیکل ہیکنگ. سر جی ایتھیکل ہیکنگ جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی کا ایک بڑا چھوٹا سا چنک ہے. سائبر سیکیورٹی 300 گھنٹے کا کورس ہے, ایتھیکل ہیکنگ اس میں صرف 40 سے 60 گھنٹے کا ایک چھوٹا سا پیس ہے. چلیں جی سر جی, کورس کون سا کرنا ہے یہ سب آپ نے سوچنے ہیں. ہر چیز کی ڈیمانڈ پڑھنے کے بعد انسان نے خود کریٹ کرنی ہوتی ہے. میں نے آپ کو ویسے تو کہا کہ فری لانسنگ کے جب آپ لیکچرز رکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ سودا بیچنا کیسے ہے. اور ہم نے ہر بندے نے تیار رکھنا ہے کہ جو پڑھنا ہے بیچنے کے لیے, باہر سے کمانے کے لیے, ڈالر پاکستان میں لانے کا تیار کر لیں. گیم بدلے ہی بدلے انشاءاللہ. جی سر. جی اسی کے اندر پینیٹریشن ٹیسٹنگ, رسک مینجمنٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کروائی جاتی ہیں, فورینزک اور سب. ایبسلیوٹلی بالکل. سر جی ایک دفعہ تو بلاواں گے جی, بچہ دیکھیں گے نا واقعی ہے, 2 نمبری نہ ہوتے, مطلب ہم سے گوشت بچے ایویں مطلب بس ہو جائے چل ٹھیک ہے یار پرچہ دلا دیں, ایسے نہیں ہوگا. یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں CCNA, سر بس اب ذرا ادھر واپس آ جاتے ہیں. لوگ جو ہے نا بالکل جی آن لائن جو اویلیبل ہے بتائیں گے, اور آپ نے بالکل فالو کرتے جانا ہے. جو سرکاری مفت آپشنیں آئیں گی ایک نہیں چھوڑنی ہے. سر میں آپ کے لیے ٹائمنگ نہیں کر سکتا, تو سر آپ نہ کریں. آپ کوئی ایسا کورس کر لیں جو آپ کو ٹائم پہ بنتا ہو, اور لیکن جس میں دل ہو. ہم جان کے نا بڑے چلاک ہیں, ہم نے بڑے بہت سمجھدار لوگ ہیں, ہمیں پتا ہے ہم نے کن کو پڑھانا ہے, کدھر کرنا ہے, کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا. تو یہ سمجھداری سے کرتے ہیں. ہم ہر چیز بچے کے آگے ویسے نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے چلیں. جی سر کلاؤڈ سیکیورٹی کراتے عرصہ ہو گیا, کیا ہو گیا سر؟
क्लाउड सिक्योरिटी का पूरा तुमने एजी 700 का पेपर करना है तो तुम्हें बताओ, क्लाउड सिक्योरिटी का पूरा पेपर करा देते हैं तुम। तो मैं तो बहुत बात की बात है, बच्चा मेरा कराएगा। मेरे सर वो कोलीग हैं, वो आपकी बेटी यूएस में है ना, तो हाँ। वहाँ से कह रहे हैं हम कर रहे हैं। वो कर रहा है, सबसे बड़ी मेहरबानी सर। मतलब इनका कुलीग मेरे बच्चे से कहता होगा और ठीक है। वो यकीन मानिए ये कहते हैं कि आपसे भी वो छोटा है, 22-23 साल की है। मेरा बेटा मेरे से ही छोटा होगा। मुझसे हाँ तुमसे छोटा, हाँ तुमसे छोटा। शुक्र है यार, अल्लाह तेरा शुक्र है, तुझे तो मेरे बच्चे में मेरे तो छोटा है वो मतलब। लेकिन वो सर गूगल क्लाउड का प्लेटफॉर्म, अज़ूर का प्लेटफॉर्म, AWS का प्लेटफॉर्म, फिर बाहर से प्रोजेक्ट्स और बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसने बाहर से। वही मैं आपको बता रहा हूँ, उधर बैठकर यूके से उसने डिजिटल मार्केटिंग के SEO के प्रोजेक्ट पकड़ के तो यहाँ पर आगे बंदे हायर करवाए। मतलब वो वापस आ जाएगा अभी थोड़े टाइम पे। मतलब ये नहीं कि वो रहता ही वहां पे है, वो बिल्कुल अब्बा जी के ऊपर नक्शे कदम पे है। उसको कहा बेटा यहाँ के लिए तुमने काम करना है, और इसका मतलब है कि अगर वो क्लाउड पे है और मैंने तुम्हें उस रास्ते पे चलाया, तो मैं तो अगर 2 नंबर होता तो मैं तुम्हें कहता ना जी यार ये ना करना, कहीं ये ना हो तो मेरे बच्चे के कहीं बराबर ना आ जाओ। तो ये काम नहीं है। जिस चीज का दौर है करो आगे होकर, ठीक है जी। और अब आपने ऑप्शन अवेल मैंने सारी बता दी, कहीं पैसा लगाने की जरूरत नहीं, किसी मल्लेदार को कहीं पैसा लगवाने की जरूरत नहीं। आपने उठना, और ये नहीं कि हम पहली दफा कह रहे हैं, इससे पीछे 2500 एक बच्चा की है, और माशाल्लाह उनके आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं कि वो किस लेवल पर अभी है। चलो जी, अब वापस आ रहे हैं। यहां पर बात हुई कि ये खत कहां पर आए, डाकखाने। डाकखाने में क्या होना है, सॉर्टिंग होनी है। और मैंने अभी जुमला लिखवा रहा था, वो क्या था, सॉर्टिंग होगी, एंड सॉर्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क एड्रेस की बुनियाद के ऊपर। यानी लाहौर के खतों को अलग कर लो, कराची के खतों को अलग कर लो। यानी जब आपकी सारी ईमेल्स इंटरनेट पर पहुंचती हैं तो क्या किया जाता है, जीमेल की इंफॉर्मेशन को अलग, याहू की इंफॉर्मेशन को अलग कर लिया जाता है, फेसबुक की इंफॉर्मेशन को अलग कर लिया जाता है। ये अलग अलग करना क्या कहलाता है, इट्स अ सॉर्टिंग। और ये जो सॉर्टिंग हुई, ये किस बुनियाद के ऊपर हुई, कंपनियों की बेस के ऊपर। कंपनी बोले तो नेटवर्क, यानी आपने याहू का नेटवर्क अलग, हॉटमेल का अलग, जीमेल का अलग कर लिया। तो ये सॉर्टिंग की गई ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क एड्रेस। जबरदस्त हो गया सर। अच्छा, अब अगर हम यहां पर आए, जो पढ़ा जरा उसको थोड़ा सा दोबारा एक बेहतर जाविये से आपको एक्सप्लेन कर। आपको याद होगा ये नेटवर्क लेयर लिखी थी, क्यों जी, याद है? और उसके बाद मैंने कहा था कि यार ये सर आता हूं असल में, आप उसको फ्रिज में रखें, आया आगे आगे। ये जी नेटवर्क को हमने डाकखाना कहा, नेटवर्क को हमने डाकखाना कहा। यहां पर अगर आपको याद हो तो राउटर था, जिसे हमने लेटर बॉक्स कहा। ये वो लेयर थी जहां पर सॉर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन थी। और ये वो जगह थी जहां पर खत हेलो आया था, खत ही था ना, लेकिन हेलो बाय इटसेल्फ बेमानी था। इसको मानी कब मिले, जब यहां पर इसके ऊपर आवाज लगाएं, आईपी एड्रेस लगा तो उसको मानी मिल गए। आईपी एड्रेस बोले तो लेट्स से 192.1.1. इट कैन बी एनी, ये कोई भी एड्रेस हो सकता है, मैंने लगा दिया। इसे मैं कह सकता हूं खत बमा एड्रेस। खत डाकखाने में बमा एड्रेस ही आता ना, तो ये हेलो के ऊपर क्या है, आईपी एड्रेस है। अब ये डाकखाना भी है, लेटर बॉक्स भी है, सॉर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है, खत भी आ रहे हैं। तो फिर यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिसिंग है, और वो है डाकिया। डाकखाना है तो डाकिया भी होगा। यार भाई, हमारी नजर
muted. اور لیٹر باکس میں خط بما ایڈریس کہاں پہ گیا؟ لیٹر باکس میں. اب خط لیٹر باکس میں پڑے نہیں رہتے, وہاں پر کون آتا ہے؟ ڈاکیا. خطوں کو باہر نکالتا اور بیٹھ نہیں جاتا, کیا کرتا ہے؟ ان کی سارٹنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اور آئی پی کے کتنے ایسے ہوتے ہیں؟ 2 ہی ہوتے ہیں نا, نیٹ ورک اور ہوسٹ. ہے ذرا چیک کریں کیا ہوا. خط بما ایڈریس سب سے پہلے سٹیپ میں کہاں پر آیا؟ لیٹر باکس میں. وہاں پر کون آیا؟ ڈاکیا. ڈاکیا نے خطوں کو نکالا اور نکال کر بیٹھ نہیں گیا, بلکہ کیا کیا؟ سارٹنگ. سارٹنگ کی کس بنیاد کے اوپر؟ آن دا بیسس آف نیٹ ورک ایڈریس. میں امید کرتا ہوں کہ یہ پورا فلو سمجھ آیا ہوگا. اب اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ درمیان میں سے, چلے پہلے درمیان نہیں, میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بتاؤ جلدی سے, آئی پی ایڈریس کس لیئر پہ؟ نیٹ ورک لیئر پہ. راؤٹر کس لیئر پہ؟ سب نیٹ ماسک کس لیئر پر؟ سارٹنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن کہاں پر ہوتی ہے؟ ایسے ہی ہے نا. تو اگر میں درمیان میں سے یہ نکال بھی دوں تو کیا تم ان چیزوں کو دیکھ کر بتا نہیں سکتے کہ تم اس وقت کہاں پر بیٹھے ہو؟ تم اس وقت نیٹ ورک پر بیٹھے ہو. ان کو دیکھ کر تم بتا سکتے ہو کہ تم اس وقت نیٹ ورک پر ہو. اور اب اگر کوئی بندہ یہ جملہ بولتا ہے کہ آج وہ کسی کمپنی میں گیا اور اس نے جا کے نیٹ ورک لیئر کو پکڑ لیا, یہ جملہ غلط ہے. اگر وہ یہ جملہ بولتا کہ آج وہ کسی کمپنی میں گیا اور اس نے جا کے راؤٹر کو پکڑا جو نیٹ ورک لیئر پہ کام کرتا, تو یہ صحیح جملہ ہے. کیونکہ نیٹ ورک لیئر نہیں ہے کوئی چیز, یہ وہ ڈبے ہیں جن کو تم ہاتھ پہ پکڑتے ہو تو تم کہتے ہو یہ وہ ڈبہ ہے جو نیٹ ورک پر کام کرتا ہے, یہ وہ ڈبہ ہے جو نیٹ ورک لیئر پہ کام کرتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ صرف اس حصے کو دیکھ کر تم بتا سکتے ہو کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں؟ نیٹ ورک کے اوپر. اور یہ ساری تمہیں جو فلو چارٹ آف دا ڈیٹا ہے اس کی سمجھ آتی ہوگی. میں صرف ذرا 2 منٹ, مجھے حامد بھائی نے کہے تھے کہ ذرا آپ کو سسکو کا تھوڑا سا ہواوے کا ایگزام والا پروسیس بتانا ہے, وہ بتاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم اپنا لیکچر آج جلدی ختم نہیں کر رہے. آج ہم نے 10 منٹ کی گپیں ماری. سر میں آقت آئے گی کر کے جاؤں گا. حامد بھائی ذرا 2 منٹ میں آپ. ہیلو, السلام علیکم. آپ لوگوں کو سسکو اکیڈمی کا اور ہواوے اکیڈمی کا کچھ بتانا ہے. اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو گروپ کے اندر ڈیٹیل شیئر کرنے کے لیے کہا تھا. ایک آپ لوگوں نے آؤٹ لک کی ایک ای میل بنانی تھی نیو, ٹھیک ہے. اس کا پاسورڈ covid@123 رکھنا ہے, سی کیپیٹل. اور اس کے بعد ایک آپ لوگوں کی جی میل چاہیے تھی جو آپ لوگوں کے پاس ہے. نیو ای میل بنانی ہے, یعنی کہ اولڈ ای میل نہیں دینی. اچھا, جو سسکو کی ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو سسکو اکیڈمی میں رجسٹر کروں گا. اس کے 3 موڈیول سٹارٹ کریں گے. پہلا موڈیول 20 دن کا, آگے پھر 20 دن کے بعد دوسرا موڈیول سٹارٹ ہوگا. اس کے بعد پھر 20 دن کے بعد تیسرا موڈیول سٹارٹ ہوگا. یہ تقریباً 2 ماہ سے اوپر ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے. اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو سسکو کی طرف سے 3 سرٹیفکیٹ ملیں گے ٹریننگ کے, جو کوربٹ کی ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ دے گا, لیکن سسکو بھی اپنی طرف سے 3 آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے. اور دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ واچر ملے گا. اگر آپ کے فل فیس $300 ہے سسکو کی CCNA کی, لیکن یہ موڈیول کرنے کے بعد آپ کو $125 پے کرنے پڑیں گے بس, یعنی کہ $175 آپ کو ملے گا.
वो अकुवत में है, हर बच्चा अकुवत में तो नहीं जाएगा। अगर आप 150 बच्चे हो, 88 ये है और बाकी ये है, तो हर बच्चा अकुवत में तो नहीं जाएगा। अकुवत में भी है लेकिन वो फ्री है, लेकिन इधर ये आपको डिस्काउंट ऑफर मिल रही है। यानी कि अगर आप लोग सिस्को अकेडमी में रजिस्टर्ड होते हो और आप लोग 3 मॉड्यूल ठीक करते हो तो फिर आपको वो डिस्काउंट ऑफर यानी कि डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हवावे का पेपर के लिए आप लोगों को आउटलुक की ईमेल ही बनानी पड़ेगी। काफ़ी लोगों ने मुझे जीमेल भेजी है, लेकिन कुछ लोगों ने जिनकी जीमेल का मसला है, आउटलुक का मसला है, उनके पासवर्ड नहीं ठीक है, वो लोग दोबारा भेजेंगे। मैं वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा लिस्ट को, वो लोग दोबारा भेजेंगे। अच्छा इसमें जी पासवर्ड चेंज करके भेजना है, दोबारा नहीं, न्यू बनानी पड़ेगी। जीमेल आउटलुक का पासवर्ड चेंज करते जो आपने बताया वही करते हैं। इससे पहले हमने बना के रखा हुआ था पासवर्ड। ठीक है। पासवर्ड चेंज हो जाता है ना सर आउटलुक का। यार इसलिए तो आप लोगों को कहा कि न्यू ईमेल बना के दो, उसमें तो न्यू ईमेल के अंदर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नाम होगा आपका और क्या है, नंबर भी नहीं पूछता वो आउटलुक के ऊपर। आउटलुक की फॉर्म जो कह रहे हैं जी हामिद भाई सुन ले और कर लीजिएगा। और एक बंदा मुझे कहता सर ईमेल का पासवर्ड क्यों शेयर करूं, मैं कहना कर भाई, मैं को उधर से कोई अल्लाह माफ करे तेरे नोट तो नहीं निकाल लेने भाई। उसका ईमेल और पासवर्ड आपसे ये कहा कि नया क्रिएट कर ले जिससे कुछ ना हो, ताकि उसके ऊपर सारी एक्टिविटी करनी है। जो पेपर्स बुक होते हैं ना आपके माइक्रोसॉफ्ट के भी हवावे के भी, वो सारे आपके ईमेल के अगेंस्ट होते हैं उसमें। तो वो जाके आप तो बुक नहीं करेंगे, हाँ आपने बुक करने अपने पैसे देके बुक करने हैं, बिस्मिल्लाह आप करते रहे, हमें कोई इतराज नहीं होगा। तो ये इसलिए बताया मैंने, ये कभी भी नहीं कहा कि आप जो पर्सनल ईमेल है ना जरा उसका पासवर्ड शेयर कर दो। और भाई आपने जो ईमेल क्रिएट करनी है अपने नाम से भी ना करें, नाम आपका अहमद कमाल है, रख दे नशीद जान ईमेल में यार, मतलब इसमें तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, क्यों सर? चल आ जाइए। यानी इस क्लास ही के एक लड़के को मुझे समझाते कोई 4 दफा वॉइस मैसेज करना पड़ा, एंड पे आखिरी मैंने सोचा था हूं मैं जवाब नहीं देना, वापस आ जाता सर अपने काम पर। जरा जल्दी से सबनेट मास्क किस लेयर पे छा गए, सॉर्टिंग कहां पर, आईपी एड्रेस कहां पे, राउटर कहां पे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब लड़के कह रहे हैं सर साबित करें सबनेट मास्क डाकिया है, लड़के कह रहे हैं सर साबित करें ये सॉर्टिंग करवाता है, लड़के कह रहे हैं सर साबित करें कि सॉर्टिंग जो होती है नेटवर्क एड्रेस की बेस पर होती है। इजाजत है जी? बहुत लाइक है आप लोगों ने। एक ऑपरेशन होता है एंड ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। किसी ने नाम ना सुना हो तो बताया, जिन नाम नहीं सुना सिर्फ उनकी इज्जतें महफूज हैं, जो नाम नहीं सुना। अब चारों ने नाम सुना तो हाथ खड़ा करेंगे, नहीं सुना नाम, एक दो आपने सुना, तो आप टेंशन में क्यों है जी बेटा? आप लोग 5-7 बंदे जिन्होंने नाम नहीं सुना, जबरदस्त। एंड ऑपरेटर जी, जिन्होंने मल्टीप्लायर का नाम, मल्टीप्लिकेशन का नाम नहीं सुना, मल्टीप्लिकेशन का नाम 1 2 3 सर ना ज्यादती ना करो सर, बेटा तू कैमरे में मेरा क्या कैप्चर कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन बोले तो जरब, और 2 दूनी 4 जरब कहते हैं। आपको नहीं सर कोई टेक्निकल क्लास में कोई टेक्निकल बात नहीं है इसमें। एंड माने मल्टीप्लायर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। इन लोगों को इनकी यूनिवर्सिटियों में एंड ऑपरेटर करके पढ़ाया गया, लॉजिकल ऑपरेटर करके पढ़ाया गया। असल में हमें उसी यूनिवर्सिटी के अंदर, यूआईटी के अंदर ये कह के पढ़ाया गया था कि यार ये हर लॉजिकल ऑपरेटर के पीछे
कोई ना कोई मैथमेटिक्स होती है। तो हमें उन्हें कहा था कि ऐड मींस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, जिन लोगों ने अब हाथ खड़ा किया था उनकी तो बचत है, और जिन्होंने हाथ नीचे रखा था वो जरा जल्दी से ऐड जो लॉजिकल चिप है उसका नंबर जल्दी से बता दें। याद तौबा करो यार, एंड की जो चिप है उसका नंबर बता दें। तो 110 बंदों ने अपने घर वालों के पैसे बर्बाद किए और फिर वो इस मुल्क को बोलते हैं। ऑनलाइन वाले भी साथ इस गुनाह में शामिल हैं। ट्रिपल वन अस्तगफुर, ये नाम आया 74 से बराबर। मैं 555 की बात नहीं कर रहा, मैं ऑप एम्प की बात नहीं कर रहा, मैं टाइमर्स की बात नहीं कर रहा। तो मतलब मैं पेशे के एतबार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इसलिए मेरे साथ बिल्कुल कोई काम गलत नहीं करना। 74 से 8 जी, बिल्कुल सही कहा। 74-2, 74-4, 74-8, 16, ये सब डिपेंडिंग अपॉन कितने गेट्स हैं, ये चिप का नंबर है, याद रखिएगा 74 से 8। काश के आपने वो जो ब्रेड बोर्ड पे वो छोटा सा केचवा लगाते हैं आईसी, उस पर लैब करते हुए उसके ऊपर नंबर भी पढ़ लिया होता, काश। तो एंड बोले तो मल्टीप्लाई, आपने मल्टीप्लाई याद रखना। और मल्टीप्लायर की एक बीमारी है कि मल्टीप्लायर को कम से कम कितनी इनपुटों की जरूरत होती है? 2। क्यों? क्योंकि अगर तुमको कहे 2 मल्टीप्लाई, तो जब तक दूसरी इनपुट नहीं बताओगे तुम उस वक्त तक काम पूरा नहीं कर सकते। इट कैन बी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, इट कैन बी सेम इनपुट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। सो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमेशा 2 इनपुट होती हैं। तो यहां पर क्या है, इनपुट 1 होगी, इनपुट 2 होगी, और नतीजे में क्या आएगा, एक अदद आउटपुट आएगी। ऐसे अब हम कहते हैं और भाई 2 बिटे हो तो यही 4 कॉम्बिनेशन लास्ट टाइम बताए थे ना, 2 बिटे हो तो यही कॉम्बिनेशन। सो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर है। बेटा जल्दी से बताओ 0। बेटा आप बताओ 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर है 0, और 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर है 0। माइक अनम्यूट हो गया, किसी का माइक अनम्यूट हो गया, बड़ा अच्छा। चलो क्या हो सर जी, ऑनलाइन में जरा काइंडली कंफर्म कर दें, आवाज आ रही है ना? जबरदस्त, वापस आ रही। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर इज, और आखिर में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 1। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है भाई। अब आपको डीएलडी एक सब्जेक्ट है, डिजिटल लॉजिक डिजाइन बाय मॉरिस मानो, बड़ी मशहूर किताब, वो उसको उर्दू में बोलते हैं मंतक। मंतक होता है चीजें देखो और उसमें से मंतक अखज कर लो। वो कहता है कि इन 2 बिटों को देखो, और मंतक ये है कि अगर इन दोनों में से एक भी बिट 0 हो तो जवाब 0 आएगा, ये मंतक है। और अगर दोनों बिटें 1 है तो आंसर तुम्हारा 1 है। ये है मंतक। हमने इस सब्जेक्ट को मंतक की इस्लाह में प्लीज नहीं पढ़ना, हमने जो पढ़ना है वो क्या है, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन। कि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर इज 0, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 1। हमने ऐसे याद करना। यहां तक साफ है? अब आते हैं कहानी के अगले स्टेप पर। सर्कल को तो समझ गए, राउटर या कोई डब्बा इस वक्त, ये लिंक टर्मिनेट हुआ, यहाँ ये कोई पोर्ट होगी ऐसे, यहां से क्या आएगा, खत, खाती है। अगर राउटर डालखाना है तो खाती आएंगे ना, ए हेलो, खाली हेलो आएगा, बोले हेलो बम्मा एड्रेस, शुक्र है आईपी एड्रेस। और ये क्या हो गया, दिस इज योर इनपुट 1, ये यहां पर अंदर दाखिल हो गया। अहम बात यह है कि जब कोई खत डाकखाने में पहुंचता है तो उसके अंदर क्या है वो नहीं पढ़ा जाता, उसके सिर्फ खत के ऊपर जो एड्रेस होता है उसको देखा जाता है। इसका मतलब है जब ये हेलो तुम्हारे इस डब्बे के अंदर दाखिल होता है, इस हेलो को नहीं देखा जाता, सिर्फ किस चीज को देखा जाता है, इस एड्रेस को देखा जाता है।
साथ में यहां तक अच्छा आ गया। द मोमेंट ये यहां अंदर दाखिल होता है ना, तो इसके एग्जैक्टली पोर्ट के पीछे, कभी अल्लाह आपको तौफीक दे इसका टापा ओपन करें, या कभी अपने कंप्यूटर की पोर्ट जहां पर है उसके पीछे बॉक्स के अंदर देखें और अच्छे से गौर से चिप के ऊपर नंबर पढ़ें, तो उसका नंबर वही 74XX होगा, 740248 कोई भी। इसका क्या मतलब है कि पोर्ट के एग्जैक्टली पीछे कौन सी चिप लगी है। आप एंड बोल रहे हैं, मैं आज के बाद क्या बोलूंगा, मल्टीप्लायर। पोर्ट के पीछे क्या लगा है, मल्टीप्लायर। तो यहां पे लगा है जी मल्टीप्लायर। सो जब ये इनपुट यहां दाखिल होती है तो इसका वास्ता किससे पड़ता है, मल्टीप्लायर से। और मल्टीप्लायर का तो एक बीमारी है कि वो जब तक दूसरी इनपुट नहीं होती अपना ऑपरेशन मुकम्मल नहीं करती। आप में से जो कुछ पढ़े लिखे भाई हैं उनको पता होगा, एक होता है बफर या लैच, उसमें ये इनपुट आती है ना तो ये एज इट इज आगे निकल जाती है। तो जो बफर या लैच होती है उसमें सिंगल इनपुट इज इनफ, लेकिन जो मल्टीप्लायर है उसको बीमारी है, वो अपना ऑपरेशन उस वक्त तक मुकम्मल नहीं करती जब तक कि दूसरी इनपुट नहीं बताई जाती। सो अब क्या होगा, वो इसको यहां पर रोकेगी। क्या करेगी, इनपुट को रोकेगी। रोकने को अंग्रेजी में माइक्रो प्रोसेसर्स के सब्जेक्ट में नाम दिया जाता है इंटरप्ट। क्या नाम दिया जाता है, इंटरप्ट। नाम तो सुना होगा इंटरप्ट का। इंटरप्ट होता है रोक दो, और रोकने के बाद रोक ही नहीं दिया जाता, फिर एक क्या किया जाता है, एक भेजा जाता है, इसे बोलते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट। क्या जी सर जी, वो लोग कह रहे हैं भाईजान पीछे से आवाजें आ रही हैं, जरा थोड़ी सी आवाज बंद करनी है। जो भी कोई पीछे मुंह में बोल रहा था, ये आगे से शिकवा किया बंदा, मैंने नहीं किया। जरा हाथ खड़ा करके बता तूने शिकवा किया। जी जी सर। भाई इसको मारना जिसने मारा। तो क्या हुआ जी, क्या हुआ जी, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। और ये यहां पर इंटरप्ट की इस रिक्वेस्ट को कहां पे भेजेगा, प्रोसेसर पे। भाई डब्बों में प्रोसेसर तो लगा होता है ना, कंप्यूटर में भी प्रोसेसर लगा हुआ। ये रिक्वेस्ट को कहां पे भेजेगा, प्रोसेसर। और प्रोसेसर को कहेगा भाई मैं फंस गया, मैं फंस गया, मुझे निकाल इससे। और मैं कैसे निकालेगा, वो उसको सेकंड इनपुट बताएगा। जाहिर बात है कोई इंटेलिजेंट चीज होगी, कोई दिमाग होगा तो बताएगा। दिमाग क्या है, प्रोसेसर। तो लिहाजा रिक्वेस्ट जानी भी किसके पास जाइए, प्रोसेसर के पास। सो यहां से आने वाले को रोका, और रोककर उसने दरख्वास्त की प्रोसेसर को, भाई मुझे बता मेरी दूसरी इनपुट क्या है। प्रोसेसर पता क्या कहता है, प्रोसेसर पता क्या कहता है, चेक द क्लास। याद करें मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, जब भी कोई आईपी सिस्टम में दाखिल होता है सबसे पहले उसकी प्रूव कर रहा हूं, आज बात को प्रूव कर रहा हूं बात को, कि जब भी ये आईपी या कोई भी चीज सिस्टम में दाखिल होती है सबसे पहले उसकी क्लास देखी जाती है। प्रोसेसर कहता है चेक द क्लास, वो कहता है ओ इट बिलोंग्स टू क्लास सी। और अब प्रोसेसर क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। नाम सुना होगा रिटर्न करना। जो मेरे भाई प्रोसेसर वाले ये लोग हैं, प्रोग्रामिंग वाले लोग हैं, उनको पता है वैल्यू को रिटर्न करवाना। सो प्रोसेसर ने देखा चेक द क्लास, वो कहता है इट बिलोंग्स टू क्लास सी, और वो कहता है वैल्यू को रिटर्न कर दो। और वो वैल्यू क्या है, सेकंड इनपुट क्या है, सबनेट मास्क। एंड द सबनेट मास्क फॉर क्लास सी इज 255 255 255.0 और ये वैल्यू किसने रिटर्न की है, प्रोसेसर ने। तो दिस इज एक्चुअली अ सेकंड इनपुट। तो पहली इनपुट क्या थी, आईपी, कहां से आया, बाहर से। उसके बाद क्या उठाया गया, क्या उठाया गया, सबनेट मास्क। किसने वो रिटर्न किया, प्रोसेसर ने। सवाल सब नहीं साबित करें, साबित करना बड़ा आसान, बड़ा ही आसान। आप एक काम करें, आज घर पे जाइएगा अपने कंप्यूटर पे, जहां पे ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस की तो स्टैटिक आईपी लिखें, वहां पे जाके ये वाला आईपी दें 192.1.1.1, उसके आगे अगली ऑप्शन है सबनेट मास्क की, वहां पे सबनेट मास्क मत डिफाइन करे, वो खुद ब खुद उठा लेता है। वो कहां से आया, तुम्हारे प्रोसेसर ने वैल्यू रिटर्न की। कैसे, उसकी क्लास देख। समझ रहे हैं? तो अब क्या हुआ, नाउ यू हैव गॉट टू इनपुट, इनपुट 1 इनपुट 2, ये दोनों क्या होगी, मल्टीप्लाई, और उसके नतीजे में क्या होगा, एक आउटपुट आएगी।
तो इनपुट 1 भी आ गई, इनपुट 2 भी आ गई, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, आउटपुट आएगी। मैंने आपके साथ बिलीव करें प्रोग्रामिंग, लॉजिक डिजाइन, माइक्रो प्रोसेसर की सही इस्तेलाह यूज करते हुए ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। मैं अगर चाहता जैसे आपकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, मैं भी सीधा सीधा आसान करके बात कर सकता था, और वो आसान बात पता क्या है जो यूनिवर्सिटियों में कराई जाती है, वो ये कराई जाती है। ये लो जी बैक कर लें, तस्वीर क्या है सर, तस्वीर बना के ग्रुप में डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। ग्रुप बंद है, ये बड़ी बड़ी बेवजूल बातें कर रहे होते हैं, 150 मैसेज दोबारा खोल देते हैं, टू द पॉइंट बात रखेंगे तो ठीक रहेगी। चलें सर खोल दीजिएगा, टू द पॉइंट बात दफा मैसेज होते हैं, कर दीजिएगा। चलें जी, अब आते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है। आपको पढ़ाया जाता है एक ना आईपी होता है, ये आईपी होता है, और ना एक इसका फिर सबनेट मास्क होता है। ये दो चीजें होती हैं। ये अब आपको समझ आ गई ये सबनेट मास्क कहां से है, क्लास के लिए। और फिर वो कहता है इन दोनों को ना एंड करेंगे हम, और यकीन जाने पूरा सेमेस्टर अल्लाह के फजल से सिर्फ इनको खोलकर एंड कराने में खत्म कर दिया जाता है बस। हालांकि इसको करने में कुल आपके 5 मिनट चाहिए होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अब एंड करेंगे जिसके नतीजे में क्या आएगा, एक अदद आउटपुट। सुनते जाइएगा, आउटपुट का क्या नाम है अभी मैं उस पर बात बाद में करूंगा। क्या करेंगे, इनपुट 1 को जब एंड करेंगे इनपुट 2 से, मैं एंड कोई नहीं कह रहा भाई, मल्टीप्लाई आसान चीज, हमारे पास पढ़ने को और बहुत सारी चीजें। सो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जिसके नतीजे में आउटपुट आएगी। सो मल्टीप्लाई करने की इजाजत है जी, जबरदस्त, तमाम उलमा ने क्या इजाजत है। 255 का क्या मतलब है, ऑल वंस। बहुत मुश्किल सवाल पूछने लगा बेटा। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 1, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 1, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 1। जबरदस्त। बचपन में पारे क्या याद किए थे, 2 एकम 1, 3 एकम 1, 4 एकम 1। और बचपन में पारे याद किए थे 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज एनीथिंग 1 नहीं, वो फिर भी 1 कह रहा है। अस्तगफार अस्तगफार। तो भाई किसी भी चीज को 1 से ज़रब दी जाए तो जवाब वही चीज होता है, 1 नहीं होता। भाईजान तुम लोगों ने आज गुमराह किया खवातीन, हमेशा खवातीन ने गुमराह किया लड़कों को, लेकिन आज लड़कों ने गुमराह किया है। मैं बड़ा दुखी हूं इस बात पे यार। चलो कोई मसला नहीं, वापस आते हैं। सो 192 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 192। सीधी सी बात। अच्छा अभी पता क्या करेंगे यूनिवर्सिटी में, इसकी बिटें खोलेंगे, एक एक बिट को पकड़ेंगे, फिर एंड करेंगे, पूरा 1 घंटा जाया। जरूरत ही नहीं है यार। जब आपको पता है ये 192 है, नीचे 1 है, उसको ज़रब देना तो आंसर वही चीज आएगी। और अगर ऐसे भी याद ना होना, एक बड़ा आसान तरीका याद करने का, 255 का मतलब है खुला पाई। क्या, जो ऊपर फेंकोगे सीधा नीचे, हक नीचे। 255 का मतलब खुला पाइप, 255 का मतलब खुला पाइप जो ऊपर से फेंका नीचे। 255 का मतलब खुला पाइप, जो ऊपर है वो, और 0 का मतलब है बंद पाइप। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर फेंकेंगे वो ऊपर ही रह जाएगा। और पढ़े लिखे लोगों के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर इज 0। शुक्र अल्लाह। तो जवाब आ गया 192.1.1.01 नहीं। ये कौन है मोइन भाई, आखिरी 1 नहीं है मेरी जान। हो गया जी। कोई खोलने के चक्कर में नहीं पड़ना अभी प्लीज, आसान चीज है, आसान रखो। तो ये तुम्हारे पास जवाब आ गया। अब इस जवाब का एक खास नाम है। कई लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, सर जान दो, बस जान दो। ये वो लोग हैं जिनका पढ़ने का कभी दिल ही नहीं किया। साथ गर्दने भी अलग, जी सर।
तो ये आपके पास जवाब है। अब सवाल से जरा जवाब को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इजाजत है? 5 मिनट की इजाजत दे दें, मजा आएगा आपको। आईपी के 2 हिस्से हैं। जिनकी शादी हुई होती है ना, लेट हो जाते हैं, उनसे पूछो कितनी टेंशन होती है। भाई से पूछो ये 5 मिनट के कैसे जवाब इसने देने हैं। चलो जी, आईपी के 2 हिस्से, एक n प्लस। कार भी एक अच्छा, अब अगर h जो है वो 0 हो जाए, होस्ट का पोर्शन 0 हो जाए, तो अगर हम यहाँ ये वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा? n प्लस 0 इज इक्वल टू। और भाई 2 चीजें हैं, एक खत्म हो जाए तो दूसरी चीज बचेगी ना, n प्लस h। h अगर 0 हो जाए तो क्या बचेगा? और जैसे क्लास में लड़के हैं और लड़कियां हैं, अगर क्लास में से लड़कियों को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? लड़के। पिछली क्लास में एक लड़का कहता है सर कुछ भी नहीं बचेगा। और मैं कहा भाई खौफे खुदा कर, लड़के बचेंगे बेटा, क्यों जी साथ है? चलें, जबरदस्त। आज क्लास की रेंज चली जा रही है। मैंने CIDR की बात नहीं की, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग को CIDR नहीं, सर ना कोई ऐसी बातें ना करे जो मैंने नहीं पढ़ाई। चलिए जा गया, यहां तक साधन जी। n प्लस h का पोर्शन 0 हो तो क्या कहलाता है? नेटवर्क। याद रखिएगा, अभी चंद लम्हे पहले एक जवाब था 192.1.1.0, ये जवाब याद है आपको? क्लास C के अंदर अगर आपको याद हो तो नेटवर्क की बिटें कितनी थी? 24। और क्लास C में होस्ट की बिटें कितनी थी? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सिर्फ जरा मुझे 2 मिनट देखिएगा यहां पर करते। यहां से लेकर यहां तक कितनी बिटें? शुक्र है 8 का है, 3 नहीं कह दिया, 8। इस नुक्ते से अगले नुक्ते तक कितनी बिटें? 8। इस नुक्ते से अगले तक 8। यहां से यहां तक 8। 24 कितनी हो गई? यहां से लेकर यहां तक 24 नहीं होती? और ये क्या कहलाएगा? नेटवर्क का पोर्शन। यहां से लेकर यहां तक 8 बिटें बची, ये क्या कहलाएगा? एक दफा नजर उठा के देखिएगा, क्या होस्ट का पोर्शन 0 नहीं है? इधर देखें जवाब में, क्या होस्ट का पोर्शन 0 नहीं है? अगर होस्ट का पोर्शन 0 हो तो जो बचता है वो क्या होता है? नेटवर्क। जो बचता है वो क्या होता है? जो बचता है वो क्या होता है? नेटवर्क। तो यार इधर देखो, ये जो जवाब है, क्या मैं इसे नेटवर्क एड्रेस नहीं कह सकता? उलमा इसे नेट आईडी भी बोलते हैं। मतलब पढ़ने वाला, सिर्फ उलमा वही नहीं है, उनका पूरा नाम है दीनी उलमा। ठीक है, मतलब आलम तो मतलब यार मतलब ऐसे ना करो। इसका क्लास में मतलब पढ़ने वाले बैठे हैं, आलिम हो गए, ज्यादा हो गए तो उलमा हो गए। चलें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक होने चाहिए सर। हाँ, मजहब को आप अपनी जगह पे रखें साइड पे, ये बात तो हम पढ़ाई की बातें कह रहे थे। तो जो जवाब आया वो क्या जी? याद रखना, सॉर्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क एड्रेस। सॉर्टिंग आईपी पे नहीं होनी, सॉर्टिंग सबनेट पे नहीं होनी, सॉर्टिंग तो इस पर होनी है। जुमला था सॉर्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क। प्लीज कभी आपके सामने कुछ लिखा हो तो आपने आईपी एड्रेस को आईपी बोलना है, सबनेट मास्क को सबनेट मास्क बोलना है, और नेटवर्क एड्रेस को नेटवर्क एड्रेस बोलना है। मैंने वो लोग देखे हैं जिनके सामने लिखते हैं कि यार जरा बताओ ये क्या है, तो कहते हैं आईपी एड्रेस। ओ भाई, ये दिस इज अ सबनेट मास्क। अपनी टेक्निकल ग्रामर को ठीक करें। हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है, हमारी वो जो टेक्निकल गुफ्तगू है वो ठीक नहीं होती। इंटरव्यू में आपको किसी टॉपिक पे कहते हैं जरा बोलो, 2-3 मिनट के बाद आप पकड़े जाते हैं कि इस बंदे की अपनी टेक्निकल ग्रामर ठीक नहीं है। जहां आईपी बोलना है वहां नेटवर्क बोल रहा होगा, जहां नेटवर्क है वहां पे आईपी एड्रेस कह रहा है। प्लीज लफ्जों को बोलते हुए पूरी इख्तियात आईपी को आईपी बोलना है, सबनेट मास्क को सबनेट मास्क बोलना है, और आपने नेट आईडी को नेट आईडी बोलना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ओएसए मॉडल में जब डेटा ऊपर से चलता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर पहुंचता है तो वो सेगमेंट होता है, जब वो नेटवर्क लेयर पर आता है तो वो पैकेट होता है, जब वो डेटा लिंक लेयर पर जाता है तो वो फ्रेम होता है, और जब वो फिजिकल लेयर पर जाता है तो वो बिट होता है। अब हमने वो लड़के भी देखे जो स्विच पे पैकेट भेज रहे होते हैं,
स्विच पे पैकेट देंगे सर, तो फिर क्या बोले, अगर स्विच लेयर 2 पर है तो फ्रेम है, पैकेट की टर्म नेटवर्क लेयर के लिए। तो सही लेयर का इंतखाब, सही नाम का इंतखाब। तो अगर आप इस सारी कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो रादर देन पैकेट बोले, फ्रेम बोले, सेगमेंट बोले, बेहतरीन वर्ड है डेटा बोलते। सर डेटा इस वक्त लेयर 3 पे है, डेटा इस वक्त लेयर 2 पे है, ताकि आपके जो लफ्ज है ना वो चुगली ना खा जाए कि ये गलत बोल रहा है। जस्ट डेटा बोल देंगे तो खुद ब खुद कहीं मसला नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी आपने ग्रामर अपनी ठीक रखनी है। मैं अगले लेक्चर में ये क्या पढ़ाया, यहीं से आगे इंशाल्लाह सबनेट मास्क से ये नेट आईडी को जो कैलकुलेट किया, यहीं से आगे चलूंगा और साबित करूंगा कि सॉर्टिंग जो है वो नेटवर्क एड्रेस की बेस पर होती है। आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में अपने टाइम पर। बहुत शुक्रिया, आपने एक्स्ट्रा 10-15 मिनट दिए। 15 मिनट भाई मैंने आपको दाएं बाएं की बातें बताई थी, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ।